Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 10 Mensuration. And this is the last lecture for this chapter and we have covered all the concepts regarding perimeter and area. In the last video, we learned how to calculate area for a square and a rectangle. And today we will be solving exercise 10.3. So let's just start with the first question. Find the areas of the rectangles whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter. So I have to find the area of the rectangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter. So it will be something like this. Sides are 3 centimeter and 4 centimeter. And we know that area of a rectangle is length into breadth. Okay, so length is 4, breadth is 3. So this will be 4 times 3, that is 12 square centimeters. So the area for this rectangle will be 12 square centimeter. ठीक है, next देखिए 12 meters and 21 meters. Again we have one rectangle with length 21 meter and breadth 12 meter. So area we all know it is length into breadth. So it will be 21 into 12 and 21 into 12. You all can check. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, then 1 into 1 is 1 and 1 into 2 is 2. So it will be 2, 4 plus 1 is 5 and 2. So the area will be 252 square meters. Because the length and breadth both were in meters. So the area will be 252 square meters. ठीक है, next question देखिए 2 kilometers and 3 kilometers. Again we have one rectangle, length is 3 kilometers and breadth is 2 kilometers. तो area कैसे निकालेंगे? That is length into breadth. So it will be 3 into 2, that is 6 square kilometers. So the area for this rectangle will be 6 square kilometers. ठीक है, next question देखते हैं 2 meters and 70 centimeters. Now I will convert one of them into the other unit. मुझे किसी एक को दूसरे के यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेरीमीटर या फिर एरिया कैलकुलेट करते टाइम आपकी दोनों लेंथ और ब्रेड्थ सेम यूनिट में होनी चाहिए. सो लेट्स कन्वर्ट दिस 70 सेंटीमीटर्स इनटू मीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर्स. ये हम सब जानते हैं. सो अगर आपको 70 सेंटीमीटर्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी 70/100 मीटर्स. दैट इज 0.70 मीटर्स. ठीक है, दिस इज 70 100th एंड दैट इज 0.70 मीटर्स. सो द लेंथ इज 2 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 0.7 मीटर्स. अब हमको अगर एरिया कैलकुलेट करना है सो वी कैन डू दैट. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, that is 2 into 0.7, that will be 1.4 square meters. क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेड्थ किस में थी? मीटर्स में. सो द आंसर विल बी 1.4 स्क्वायर मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर. अब हमको स्क्वायर दिए हैं जिनकी साइड है 10 सेंटीमीटर. हमको उसका एरिया निकालना है. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो इट इज side into side and the side is 10 centimeters. So it will be 10 into 10, that is 100. So the area for this square will be 100 square centimeter. ठीक है, next देखिए 14 centimeters. Now I have one square whose side is 14 centimeters. So area हम calculate करेंगे which is side into side. That is 14 into 14 and 14 into 14 is 196. So it will be 196 square centimeters. Area for this square will be 196 square centimeter. ठीक है, next is 5 meters. Again मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 meters. तो एरिया अब आप सबको पता है इट इज side into side. Side is 5 meters. So it will be 5 multiplied by 5, that is 25. और
लेंथ किस में थी मेरी, मीटर्स में, तो एरिया किस में आएगा, स्क्वायर मीटर्स में, सो इट विल बी 25 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट। तो हमको यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है और हमको बताना है कि उसमें से लार्जेस्ट एरिया किसका है और स्मॉलेस्ट एरिया किसका है। तो 1 बाय 1 हम तीनों रेक्टेंगल्स को देखते हैं। फर्स्ट इज 9 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। सो वी हैव वन रेक्टेंगल विथ लेंथ 9 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 6 मीटर्स। तो इसका एरिया हमको निकालना है एंड इट इज L इंटू बी, सो इट विल बी 9 इंटू 6 एंड 9 इंटू 6 इज 54, सो इट विल बी 54 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 मीटर्स एंड 3 मीटर्स। अगेन वी हैव वन रेक्टेंगल, लेंथ इज 17 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 3 मीटर्स, सो एरिया विल बी 17 into 3 and 17 into 3 is 51. So the area for this rectangle will be 51 square meters. ठीक है, थर्ड रेक्टेंगल देखिए 4 meters and 14 meters. So length is 14 meters and breadth is 4 meters. तो हम अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे it will be 14 into 4 and 14 into 4 is 56. So the area for this rectangle will be 56 square meters. तो हमने तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था 54, नेक्स्ट 51 एंड द लास्ट 56। तो पहले रेक्टेंगल का था 54 स्क्वायर मीटर, देन सेकेंड रेक्टेंगल वी हैव 51 स्क्वायर मीटर एंड फॉर द थर्ड रेक्टेंगल इट इज 56 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट एरिया किसका है, रेक्टेंगल सी, इट इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एरिया किसका है, रेक्टेंगल बी विच इज 51 स्क्वायर मीटर्स, सो इट हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। तो हमको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है और इस बार हमको एरिया दिया है और उसकी लेंथ दी है विच इज 50 मीटर्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है, उस गार्डन की हमको विड्थ फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए हमको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है जिसकी लेंथ है 50 मीटर्स। ठीक है, लेंथ इज 50 मीटर्स एंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन इज 300 स्क्वायर मीटर्स। इस बार हमको क्या दिया है, एरिया विच इज 300 स्क्वायर मीटर्स और हमको इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, वी नो दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हमको एरिया की वैल्यू पता है विच इज 300 एंड हमको लेंथ की वैल्यू पता है विच इज 50, सो इट इज 300 इक्वल्स टू लेंथ इज 50 एंड वी हैव टू फाइंड आउट ब्रेड्थ। तो अगर हमको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस 50 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज इक्वल्स टू बी एंड 300 अपॉन 50 अगर आप करेंगे तो दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करें, आप 10 से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 30 अपॉन 5 एंड 30 अपॉन 5 इज 6। सो द ब्रेड्थ फॉर द गिवन रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मीटर्स। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी, 6 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर्स वाइड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, 500 मीटर लॉन्ग, इट इज 500 मीटर्स लॉन्ग एंड 200 मीटर्स वाइड, सो द ब्रेड्थ इज 200 मीटर्स। ठीक है, और हमको उसमें क्या करना है, टाइलिंग करनी है एंड द कॉस्ट इज ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस्ट को ध्यान से देखिए, इट इज ₹8 पर 100
अब पर 100 स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है, द रेट विल बी ₹8 पर का मतलब होता है डिवाइड, सो इट विल बी ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का या फिर रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको हम इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया वी ऑल नो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 500 एंड ब्रेड्थ इज 200, so 500 into 200 will be 1 0, 5 into 2 is 10 and 1 2 3 4 zeros, 2 3 4 meter square, so it will be 1 lakh meter square। इस रेक्टेंगुलर एरिया का एरिया कितना हुआ 1 लाख मीटर स्क्वायर, और हमको उसको टाइलिंग करनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हमको जो एरिया आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/100 से, सो इट विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100। ठीक है, अब आप दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा अगर आप दोनों तरफ 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 8000/1 and 8000/1 is nothing but 8000 only. So the total cost for tiling will be ₹8,000। 8,000 रुपीज़ लगेंगे उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइलिंग करने के लिए। स्टूडेंट्स रेट का ध्यान रखेंगे क्योंकि उसने कहा था कि ₹8 पर 100, तो हमने क्या करा रेट को 8/100। अगर वो कहता है ₹8 पर 1000 मीटर स्क्वायर तो हम करते हैं ₹8 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो एक टेबल टॉप है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर्स, और हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर मीटर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रेड्थ को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। सो ब्रेड्थ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 50 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। सो 50 सेंटीमीटर इज 50/100 meters, and 50/100 we all know it is 50/100th, that is 0.50, it is 0.50 meters. So the total breadth is 1 plus 0.50 and that is 1.50 meters. तो मेरी breadth in meters कितनी आई 1.50 meters. Now I can calculate the area. So area is length into breadth, length is 2 and breadth is 1.5 and 2 into 1.5 is 3. So the area in square meters will be 3 square meters. टेबल टॉप का एरिया कितना हुआ 3 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। अगेन हमको एक रेक्टेंगुलर रूम दिया है, इट इज 4 मीटर्स लॉन्ग एंड 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स वाइड। ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो अब इस रूम के फ्लोर को हमको कवर करना है कारपेट से, और वो पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर मीटर कारपेट लगेगा। तो हमको और कुछ नहीं करना, सिंपली इस रूम का एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया फॉर दिस रूम विल बी, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड लेंथ इज 4 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर। तो उसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स, दिस इज ऑलरेडी इन मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, इट इज 50/100 दैट इज 0.50 मीटर्स
and 3 plus 0.50 is 3.50 meters. So the breadth is 3.50 meters. So it will be 4 into 3.50 और 3.5 into 4 आप करके देख सकते हैं. It will be 4 into 5 is 20, 4 into 3 is 12, plus 2 is 14. So it will be 14.0, and 14.0 is nothing but 14 only. So the area for this rectangle is 14 square meter. तो कितने कारपेट की जरूरत होगी? 14 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. अगेन एक फ्लोर दिया है, किस शेप का है? रेक्टेंगल. एक फ्लोर है, इट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर्स वाइड. ठीक है. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर. अब एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड है 3 मीटर्स, उसको हमने इस फ्लोर पे बिछाया है कुछ ऐसे, और इसकी साइड कितनी है? 3 मीटर्स. स्क्वायर है. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. तो हमको बताना है वो एरिया जिस पे कारपेट नहीं बिछाया है या फिर विच इज नॉट कारपेटेड. तो कौन सा एरिया हमको फाइंड आउट करना है? जो बचा हुआ एरिया है, दिस वन. तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे इस रूम का, और हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर कारपेट का, और फिर हम रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वो मुझे क्या दे देगा? ये रिमेनिंग एरिया विच इज नॉट कारपेटेड. तो हमको निकालना है एरिया नॉट कारपेटेड. इट विल बी एरिया ऑफ रूम विच इज द टोटल एरिया. हम उसमें से क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ कारपेट. करेक्ट. सो इट विल बी एरिया ऑफ रूम इज 5 into 4 एंड एरिया ऑफ कारपेट विल बी 3 into 3, क्योंकि एक स्क्वायर है विथ साइड 3. सो इट विल बी 3 into 3. 5 into 4 is 20 and 3 into 3 is 9. So it will be 20 minus 9, which is 11 square meters. So the area which is not carpeted is 11 square meters. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. तो एक लैंड है हमारे पास, इट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर्स वाइड. उसमें हमने 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स डिग किए हैं लाइक दिस. ऐसे 5 फ्लावर बेड हमने डिग किए हैं और सबकी साइड कितनी है? 1 मीटर्स. सबकी साइड कितनी है? 1 मीटर्स. ठीक है. हमको क्या बताना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. तो जो रिमेनिंग एरिया है जिसको हमने डिग नहीं किया है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर लैंड का, और हम इन 5 स्क्वायर पिट्स का या फिर फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे. उसको हम टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमको क्या मिलेगा? हमको वो एरिया मिल जाएगा विच इज नॉट डिग्ड. ठीक है. तो हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ लैंड. उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लावर बेड्स. ठीक है. ये हमको करना है. तो एरिया ऑफ लैंड इज 5 into 4, लेंथ इज 5 एंड ब्रेड्थ इज 4. अब टोटल एरिया ऑफ ऑल बेड्स, हम सबका एरिया कैसे निकालेंगे? क्योंकि सब सेम साइड के स्क्वायर हैं, तो हम एक स्क्वायर बेड का एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. करेक्ट. सो इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड इज 1 into 1, क्योंकि वो 1 मीटर साइड का स्क्वायर है. सो इट विल बी 1 into 1. 5 into 4 is 20 minus
5 into 1 because 1 into 1 is 1 only. So it will become 20 minus 5. And 20 minus 5 is 15. So the area of the remaining land which is not dug is 15 square meters. Right? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज. तो हमको यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमको उनका एरिया फाइंड आउट करना है उनको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके. एंड ऑल द साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स. सारी साइड्स किस में दी गई हैं? सेंटीमीटर्स में. तो फर्स्ट फिगर देखिए, यहाँ पे एक फिगर है, साइड्स दी गई हैं 4 3 3 4 लाइक दिस वी हैव. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे और सारे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल ऐड अप द एरिया फॉर ऑल द रेक्टेंगल्स. तो इसको मैं अगर यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर दूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे मुझे ये कंप्लीट रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसकी लेंथ है 4 एंड ब्रेड्थ इज 3. तो एक स्प्लिट मैंने यहाँ से कर दिया, एक स्प्लिट हम यहाँ से कर सकते हैं और एक और स्प्लिट हम यहाँ से करेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 2 है तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी? इट विल बी 1 सेंटीमीटर. करेक्ट. सिमिलरली ये वाली लेंथ जो है वो 4 है और अगर ये 3 है तो ये वर्टिकल बची हुई लेंथ कितनी होगी? इट विल ऑल्सो बी 1 सेंटीमीटर ओनली. ठीक है. दिस इज 2, दिस इज 3. अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये 1 है तो अगर मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन बनाता तो ये यहाँ तक कितनी आती? 1 एंड द रिमेनिंग विल बी 2. यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ आएगी? 2 सेंटीमीटर्स. एंड इफ दिस इज 4 एंड दिस इज 2, ये एक वर्टिकल लाइन है. ठीक है. अगर ये 4 है और ये 2 है तो ये बची हुई कितनी होगी? दिस विल ऑल्सो बी 2 सेंटीमीटर्स ओनली एंड दिस इज अगेन 1. तो अब मैं रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करता हूँ. फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ इज 4, ब्रेड्थ इज 3. सो फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल द एरिया विल बी 4 into 3 दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ये मेरा सेकेंड रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 4, विड्थ है 1. सो सेकेंड रेक्टेंगल के लिए इट विल बी 4 into 1 दैट इज 4. अब ये थर्ड मैं कंप्लीट रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसकी विड्थ है 2 एंड लेंथ यहाँ पे देखिए दिस इज 2, दिस इज 2. तो यहाँ से यहाँ तक हुई 4 एंड दिस इज 1. सो 4 + 1 इज 5. तो इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हुई? 5 एंड द विड्थ इज 2. सो फॉर थर्ड रेक्टेंगल इट विल बी 5 into 2 दैट इज 10. मैंने ये कंप्लीट रेक्टेंगल लिया है थर्ड. एंड द रिमेनिंग फोर्थ रेक्टेंगल, उसकी लेंथ कितनी है? 2 एंड विड्थ इज 1. सो इट विल बी 2 into 1 दैट इज 2. तो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया. Now we will simply add them. So the total area will be 12 plus 4 plus 10 plus 2. 12 plus 4 is 16, 16 plus 10 is 26 and 26 plus 2 is 28. So the total area for this figure will be 28 square centimeters. ठीक है. क्लियर है स्टूडेंट्स? आप किसी और तरीके से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं बट आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 28 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए. अब इस फिगर को भी मैं स्प्लिट करूंगा तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. हम इसको 3 रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे. इनको नेमिंग हम दे देते हैं 1 2 एंड 3. ये कंप्लीट लेंथ है 5. अगर ये कंप्लीट लेंथ 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक एंड दिस इज 2, अगर ये 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी? 2. तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो इस रेक्टेंगल की लेंथ हुई 5 एंड द विड्थ इज 1. सो फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इज 2 एंड विड्थ इज 1. सो इट विल बी 2 into 1 दैट इज 2. सेकेंड रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया लिखना है, द लेंथ इज 5 एंड द विड्थ इज 1. So it will be 5 into 1 that is 5. And for the third rectangle again the length is 2 and width is 1 only. So it will be 2 into 1 that is 2. तो हमको क्या करना है? इनको सिंपली ऐड करना है. So the total area will be 2 plus
5 plus 2. 2 plus 5 is 7 and 7 plus 2 is 9. So the total area for this figure will be 9 square centimeters. ठीक है, क्लियर है. अगेन स्टूडेंट्स, आप किसी और तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज. अगेन वी हैव सम शेप्स गिवन, हमको उनको स्प्लिट करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और सारी साइड्स किस में है, सेंटीमीटर्स में. ठीक है, सबसे पहली शेप देखिए. ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 12, और अगर ये 10 है तो ये बची हुई कितनी होगी, 2, बिकॉज 12 माइनस 10 इज 2. तो अगर इस रेक्टेंगल को हम यहां से स्प्लिट कर दें, दिस इज 12 एंड दिस इज 2, यहां पे देखिए दिस इज 2, तो ये भी 2 होगी. सो फॉर दिस फर्स्ट रेक्टेंगल एरिया कितना आएगा, 12 इंटू 2. लेंथ कितनी है, 12 एंड विड्थ इज 2. So the area will be 12 into 2, and for the second rectangle the length is 8. यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, 8, and the width is again 2 only. So it will be 8 into 2. So 12 into 2 is 24 and 8 into 2 is 16, and 24 plus 16 is 40. So the area for this figure is 40 square centimeters. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. यहाँ पे एक प्लस साइन दिया है जिसकी सारी साइड्स कैसी हैं, 7 सेंटीमीटर्स की. तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से 3 रेक्टेंगल्स में, या फिर मैं कहूँ कि एक रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर्स में, बिकॉज इट्स साइड्स आर ऑल 7. ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की पहले हम बात करें, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 7, एंड लेंथ इज यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक भी 7, एंड दिस इज ऑल्सो 7. तो ये भी कितनी होगी, 7. सो 7 प्लस 7 प्लस 7 इज 21. सो द लेंथ फॉर दिस रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर्स. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, इट विल बी 21 इंटू 7. नाउ फॉर दिस स्क्वायर इट विल बी 7 इंटू 7, and for the below square it will also be 7 into 7 only. So 21 into 7 you can check, it is 147. तो कितना एरिया हुआ, 147 प्लस 7 into 7 is 49, and 7 into 7 is again 49. So this is 147 plus 49 plus 49 is 98. And 147 plus 98 will be 245 square centimeters. So the area for this figure or this plus sign will be 245 square centimeters. ठीक है, अगेन एक और फिगर दिया है हमको, तो इसको हम यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं. फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 5, एंड ब्रेड्थ इज 1. सो द एरिया फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल विल बी 5 इंटू 1. इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 4, करेक्ट, एंड ब्रेड्थ इज 2. सो इट विल बी 4 इंटू 1. सो द एरिया फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल इज 5, एरिया फॉर सेकेंड रेक्टेंगल इज 4. सो इट विल बी 5 प्लस 4, दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो हमको टाइल्स दी गई हैं जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर्स. विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेस्पेक्टिवली. तो हमको एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, हमको बताना है कि ऐसी कितनी टाइल्स वहाँ पे फिट हो सकती हैं. एंड वी हैव सॉल्व सच क्वेश्चंस, हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं. अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करते हैं. हम सब ने फॉर्मूला देख रखा है. द नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमको फाइंड करनी होती है, इट इज टोटल एरिया
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले एक टाइल का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल विल बी 12 इंटू 5 एंड 12 इंटू 5 इज 60, सो इट विल बी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखते हैं रेक्टेंगुलर रीजन का क्या एरिया है। फर्स्ट इज 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर, सो लेंथ इज 144 एंड ब्रेड्थ इज 100। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे इट विल बी 144 इंटू 100 एंड दैट विल बी 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर ऑफ टाइल्स इट विल बी, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया इज 14400 एंड एरिया ऑफ वन टाइल हमने निकाला था, इट इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट विल बी 60। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 10, तो ये कितना बनेगा 1440 डिवाइडेड बाय 6 एंड 144 divided by 6 you can do 6 into 2 is 12, remainder is 2 and 24 and 6 into 4 is 24 only. So this is 24 and 1 0. So a total of 240 tiles will be required to cover this rectangular region. ठीक है, क्लियर है। एक और रेक्टेंगुलर रीजन के डायमेंशन दिए हैं हमको, वहां भी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगी। इस बार रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, लेंथ इज 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 36 सेंटीमीटर्स। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एरिया, इट विल बी 70 इंटू 36। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएंगे, तो आप देखिएगा कि हमारी कैलकुलेशंस कैसे ईजी होती हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ टाइल्स का, इट इज टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया इज 70 इंटू 36 और एक टाइल का कितना एरिया था 60, करेक्ट। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 60। अब यहां पे देखिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा फ्रैक्शन क्या बचेगा, इट विल बी 7 इंटू 36 अपॉन 6, बिकॉज 70 डिवाइडेड बाई 10 इज 7 एंड 60 डिवाइडेड बाई 10 इज 6 ओनली, और ये 36 एज इट इज रहेगा। नाउ आई कैन सी दैट 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6 इंटू 6 इज 36, सो दिस बिकम्स 7 इंटू 6 and 7 into 6 we can easily do, it is 42 tiles. तो इस रीजन को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी, 42 टाइल्स। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि आप उसको पहले कैलकुलेट मत करिए, हम उसको फाइनल कैलकुलेशन में ही सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स दिस फिनिशेज ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। Till then, goodbye. See you in the next one.